And it's not only Rahul Gandhi for whom the Bharatiya Janata Party has reserved its choice of words. A Rajya Sabha MP, Lahar Singh Siroya, has written an open letter to the wannabe organizers of this one-on-one debate, asking them why they assume only what they do is meaningful and who made them a certification agency. Strong words there used by Rajya Sabha MP Lahar Singh Siroya, and we have that letter with us. Ankit is joining us from the newsroom. Ankit, take us through what this MP has told those who want to organize this so-called presidential style one-on-one debate. It's a blistering letter, Sagarika. We have it open here. A response to the elitist attitude of Shri N. Ram, Madan Lokur and Justice A.P. Shah. And he says, why do you assume that what you do is meaningful and what others do is not? Is this not the same elitism that has always argued that the nation and democracy can be saved only if the Congress dynasts come to power? Is this not the elitism and privilege that has been questioned since 2014? He says there are so many newspapers and TV channels that are debating and analyzing the elections. A lot of debate happens on social media. Why do you think what you do is credible and what others do is discredited? When did you people become certification agency? Don't assume that power. Why did you decide to call for this debate after 3 phases of elections had been completed? Why not think of it even before the election started? Is there mischief hidden in your intentions? Then they said you tried to do it with the EVMs, now with the election turnout figures. You have not even spared the courts when judgments have not suited you. Why don't you declare your political and ideological affiliations? All right, Ankit, do stay with us. Lahar Singh Siroya is joining us on the phone line. Good afternoon, sir. You've written a very, very strongly worded letter to those who want to conduct this one-on-one presidential style debate. You've questioned if their intention is right or not. You've asked them, why do you think that you are the only ones, what you do is meaningful? You've even questioned why they've chosen to do this after 3 phases of elections are done. हेलो, Yes. हाँ जी, ऐसा है कि बहुत बड़े लोग हैं और विद्वान लोग हैं और मैं कॉमन आदमी हूँ, लेकिन मेरे में कॉमन सेंस है। इन बड़े लोगों में आजकल कॉमन सेंस अनकॉमन हो गया है। ये कॉमन सेंस की बात 3 फेज होने के बाद में ये इस मुद्दे को लेकर के आए हैं। और अब तक जो डिबेट चल रही थी चैनल में, मीडिया में, कई विद्वान लोग बैठे चैनल में डिबेट कर रहे हैं, अखबारों में डिबेट हो रही है, तो क्या डिबेट मीनिंगफुल नहीं थी? ये जो 3 लोग कहेंगे वही मीनिंगफुल होगा? कितने दुख की बात है। और जब उनको ये जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी को क्या इंडिया अलायंस ने उनको अपना नेता डिक्लेयर किया है? वो कौन है? एक्सेप्ट कि वो किसी डायनेस्टी से आते हैं और इन बड़े लोगों की तरह के भाषाओं में बात करते हैं, उनसे मिलते जुलता उनका आचरण और पहनावा रहता है। और हमारे खड़गे जी जो कर्नाटक के बड़े अच्छे प्रशासक रहे हैं और चुनकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनको इग्नोर करके उनकी भी ये इंसल्ट और बेइज्जती कर रहे हैं। क्या वो जो अब तक कह रहे हैं वो डिबेट नहीं था? खड़गे जो अपने भाषण में जहां जहां रैली में बोले हैं, तो क्या वो डिबेट नहीं था? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? और ये सबसे दुख की बात ये है कि ये खाली उन्होंने हमेशा ऐसा कहा है कि जैसे बाबू जगजीवन राम का भी उन्होंने इंसल्ट किया था, उनको आगे आने नहीं दिया, खड़गे जी को आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या गांधी परिवार के उन्हीं लोगों की चमचागिरी करेंगे ये लोग? मुझे दुख और शर्म आती है कि जो इतने बड़े पदों पर बैठे थे और जो बड़ा मीडिया हाउस चलाते हैं, जिनको मैं बहुत आदर करता रहा हूँ, ऐसे लोग इस स्तर पर उतर आए। चाहे तो उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कर ले, कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट से एफिलेट हो जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, लेकिन सिविल सोसाइटी के नाम पर इस तरह का बयानबाजी करके ये सिविल सोसाइटी का भी बड़ा कोलेटरल डैमेज कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है देश की राजनीति के लिए और देश की स्थितियों के लिए, और ये ऑपोजिशन का बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं। सिरोया जी, ये जो आपकी चिट्ठी है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, पर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आपने इनकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल पूछा है और आपने इनसे ये भी पूछा है कि क्या आप लोग एक कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से निकल गए? आपने ये भी कहा कि आपको अब ये न्यूट्रलिटी का ढोंग करने की जरूरत नहीं है, आप आके बोल दीजिए आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। तो आप इन जिनको आप बड़े लोग कह रहे हैं, इन बड़े लोगों के लिए आज आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरे सबसे मैसेज ये है कि ये अपनी या तो अपनी सीमाओं में रहें और अपने जो पदों पर, जिन पदों पर बैठे हैं उनकी गरिमा की रक्षा करें, नहीं तो खुले खुले राजनीति में आ जाएं। चाहे फिर वो
अरुण जो राहुल गांधी के उस सेवा में रहे और किसी की सेवा में रहे, लेकिन इंडिया अलायंस को भी ये लोग डैमेज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस ने इनको नेता नहीं माना है और उनके लिए विवाद रहा है, तो इन ऑपोजिशन का भी डैमेज हो रहा है। और मुझे लगता है ऐसी हरकतों से हमारे को बीजेपी को 400 के पार पहुंचा देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो और ये 3 फेज के बाद में इनका आना, इनका डिस्प्रेशन दिखा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे सोचने का विषय है कि उनकी यूटिलिटी पर ये ऐसे लोग जो हैं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनको कोलेटरल डैमेज कर रहे हैं। और जी लाहर सिंह सिरोया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो द MP, the member of parliament who's written this letter to those who want to organize this presidential debate, a former editor to retired judges. He goes on to question their political affiliations and their ideology. He's directly accusing them of trying to rally behind Rahul Gandhi, and then he's also asking a question. Has the opposition today accepted Rahul Gandhi as the INDIA bloc's prime ministerial face? So this is the question that leaders of the Bharatiya Janata Party are asking today after Rahul Gandhi has gone ahead and said that he is ready for such a debate. You also heard Prime Minister Narendra Modi alluding to that challenge that Rahul Gandhi claims that he's thrown. And it's not only Rahul Gandhi for whom the Bharatiya Janata Party has reserved its choice of words. A Rajya Sabha MP, Lahar Singh Siroya, has written an open letter to the wannabe organizers of this one-on-one debate, asking them why they assume only what they do is meaningful and who made them a certification agency. Strong words there used by Rajya Sabha MP Lahar Singh Siroya, and we have that letter with us. Ankit is joining us from the newsroom. Ankit, take us through what this MP has told those who want to organize this so-called presidential style one-on-one debate. It's a blistering letter, Sagarika. We have it open here. A response to the elitist attitude of Shri N. Ram, Madan Lokur and Justice A.P. Shah. And he says, why do you assume that what you do is meaningful and what others do is not? Is this not the same elitism that has always argued that the nation and democracy can be saved only if the Congress dynasts come to power? Is this not the elitism and privilege that has been questioned since 2014? He says there are so many newspapers and TV channels that are debating and analyzing the elections. A lot of debate happens on social media. Why do you think what you do is credible and what others do is discredited? When did you people become certification agency? Don't assume that power. Why did you decide to call for this debate after 3 phases of elections had been completed? Why not think of it even before the election started? Is there mischief hidden in your intentions? Then they said you tried to do it with the EVMs, now with the election turnout figures. You have not even spared the courts when judgments have not suited you. Why don't you declare your political and ideological affiliations? All right, Ankit, do stay with us. Lahar Singh Siroya is joining us on the phone line. Good afternoon, sir. You've written a very, very strongly worded letter to those who want to conduct this one-on-one presidential style debate. You've questioned if their intention is right or not. You've asked them, why do you think that you are the only ones, what you do is meaningful? You've even questioned why they've chosen to do this after 3 phases of elections are done. Hello. Yes. हाँ जी, ऐसा है कि बहुत बड़े लोग हैं और विद्वान लोग हैं और मैं कॉमन आदमी हूँ, लेकिन मेरे में कॉमन सेंस है। इन बड़े लोगों में आजकल कॉमन सेंस अनकॉमन हो गया है। ये कॉमन सेंस की बात 3 फेज होने के बाद में ये इस मुद्दे को लेकर के आए हैं। और अब तक जो डिबेट चल रही थी चैनल में, मीडिया में, कई विद्वान लोग बैठे चैनल में डिबेट कर रहे हैं, अखबारों में डिबेट हो रही है, तो क्या डिबेट मीनिंगफुल नहीं थी? ये जो 3 लोग कहेंगे वही मीनिंगफुल होगा? कितने दुख की बात है। और जब उनको ये जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी को क्या इंडिया अलायंस ने उनको अपना नेता डिक्लेयर किया है? वो कौन है? एक्सेप्ट कि वो किसी डायनेस्टी से आते हैं और इन बड़े लोगों की तरह के भाषाओं में बात करते हैं, उनसे मिलते जुलता उनका आचरण और पहनावा रहता है। और हमारे खड़गे जी जो कर्नाटक के बड़े अच्छे प्रशासक रहे हैं और चुनकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनको इग्नोर करके उनकी भी ये इंसल्ट और बेइज्जती कर रहे हैं। क्या वो जो अब तक कह रहे हैं वो डिबेट नहीं था? खड़गे जो अपने भाषण में जहां जहां रैली में बोले हैं, तो क्या वो डिबेट नहीं था? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? और ये सबसे दुख की बात ये है कि ये खाली उन्होंने हमेशा ऐसा कहा है
कि जैसे बाबू जगजीवन राम का भी उन्होंने इंसल्ट किया था, उनको आगे आने नहीं दिया, खड़गे जी को आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या गांधी परिवार के उन्हीं लोगों की चमचागिरी करेंगे ये लोग? मुझे दुख और शर्म आती है कि जो इतने बड़े पदों पर बैठे थे और जो बड़ा मीडिया हाउस चलाते हैं, जिनको मैं बहुत आदर करता रहा हूँ, ऐसे लोग इस स्तर पर उतर आए। चाहे तो उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कर ले, कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट से एफिलेट हो जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, लेकिन सिविल सोसाइटी के नाम पर इस तरह का बयानबाजी करके ये सिविल सोसाइटी का भी बड़ा कोलेटरल डैमेज कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है देश की राजनीति के लिए और देश की स्थितियों के लिए, और ये ऑपोजिशन का बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं। सिरोया जी, ये जो आपकी चिट्ठी है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, पर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आपने इनकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल पूछा है और आपने इनसे ये भी पूछा है कि क्या आप लोग एक कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से निकल गए। आपने ये भी कहा कि आपको अब ये न्यूट्रलिटी का ढोंग करने की जरूरत नहीं है, आप आके बोल दीजिए आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। तो आप इन जिनको आप बड़े लोग कह रहे हैं, इन बड़े लोगों के लिए आज आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरा सबसे मैसेज ये है कि ये अपनी या तो अपनी सीमाओं में रहें और अपने जो पदों पर जिन पदों पर बैठे उनकी गरिमा की रक्षा करें, नहीं तो खुले खुले राजनीति में आ जाएं। चाहे फिर वो राहुल गांधी के उस सेवा में रहें और किसी की सेवा में रहें, लेकिन इंडिया अलायंस को भी ये लोग डैमेज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस ने इनको नेता नहीं माना है और उनके लिए विवाद रहा है, तो इन ऑपोजिशन का भी डैमेज हो रहा है। और मुझे लगता है ऐसी हरकतों से हमारे को बीजेपी को 400 के पार पहुंचा देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो और ये 3 फेज के बाद में इनका आना, इनका डिस्प्रेशन दिखा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे सोचने का विषय है कि उनकी न्यूट्रलिटी पर ये ऐसे लोग जो हैं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल डैमेज कर रहे हैं। और लाहर सिंह सिरोया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने